हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्रभु के चरणों में दास का प्रणाम, माता पार्वती और बालक गणेश को भी प्रणाम। भगवान, आपके चरणों में एक निमंत्रण लेके आया हूँ। कैसा निमंत्रण? मेरी प्रार्थना है कि आप सब मेरे महल में पधारें और भोजन ग्रहण करें। ये हमें भोजन का निमंत्रण देने के बहाने अपने धन और वैभव का प्रदर्शन करने आया है। मेरी प्रार्थना है कि आप मेरे निमंत्रण को स्वीकार करें प्रभु। क्षमा करें महाराज कुबेर, कैलाश पर्वत छोड़कर आना मेरे लिए असंभव है और शिवजी के बिना मेरा आना भी संभव नहीं है। तो क्या स्वयं भगवान के घर से मुझे निराश होकर लौटना पड़ेगा? मेरी जगह बालक गणेश जरूर आएंगे। उन्हें स्वादिष्ट भोजन बहुत ही प्रिय है। जैसी आज्ञा प्रभु। पधारिए गणेशा। महल तो भोजन के पश्चात भी देख सकते हैं। मुझे तो जोरों से भूख लगी है। हाँ अवश्य, भोजन तैयार है। आप आसन ग्रहण कीजिए। जल्दी लाओ, मुझे बहुत भूख लगी है। और खाना लाओ, और लाओ। और कहाँ से लाऊं? पूरा भोजन तो आपने ही ग्रहण कर लिया है। मुझे नहीं पता, मैं तुम्हारा अतिथि हूँ। मेरी भूख शांत करना तुम्हारा कर्तव्य है। भोजन लाओ, वरना मैं यहाँ की सब चीजें खा जाऊंगा। मुझे क्षमा करे देव, मैं अभिमानवश आपको निमंत्रण देने आया था, परंतु श्री गणेश जी ने मेरा अभिमान चूर चूर कर दिया। चलो अच्छा हुआ, तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास तो हुआ। धन दान से संपन्न व्यक्ति को फलों से लदे पेड़ की तरह विनम्र होना चाहिए, जो हमेशा झुके रहते हैं। पार्वती नंदन की जय हो। विनम्रता का यह पाठ हमारे बच्चों ने अवश्य ही बहुत ही अच्छे तरह से हमें समझाया। So once again, let us hear a big round of applause for class 2 students. And I request parents, you will not rush to collect your children. Let them change their costumes, and after 2 programs, you may slowly go and bring them back to the ground. It has been rightly said, it's not how much we give, but how much love we put into giving is what matters. Yes, Neha, you are right. The secret of life is in giving with all our heart and with all we have. Our next program portrays the life of Gautam Buddha, who was born as a prince in Lumbini, Nepal, almost 5 centuries before the birth of Jesus Christ. After a reputed 49 days of meditation, at the age of 35, he is said to have attained enlightenment and became known as the Awakened One. Let's put our hands together for Little Champs from class 2 with their skit on Nirvana.
Listen, listen, listen. Listen, listen, listen. Tomorrow, Lord Buddha himself will accept alms for charity. Oh, really? Himself? Okay, then we will not miss this opportunity. Greetings, Lord. I have one good news. Lord Buddha himself is accepting the alms. Oh, it is a great news. Yes, we must go to Lord Buddha to seek his blessings. King Bimbisar is arriving. The king is coming. Please, Lord, accept my alms. These are my deeds of lands, precious jewels, and houses. Why are you giving me so much? Please accept me as your disciple. Please, Lord, accept my valuable gifts. Please, Lord, accept my alms. Greetings, my lord. Oh, the enlightened one. I heard about you receiving gifts only today. I am a poor woman who has nothing. When I heard this news, I was eating this pomegranate. I only ate half. I have nothing else to give, so I brought along half a pomegranate. My lord, I hope you will accept this. Lord, why did you receive her gift with both hands and all of theirs with only one hand? O kings, you all gave expensive gifts indeed, but none of you gave a tenth of what you have. Your intention is for glory rather than charity. She gave her all and gave it happily. It is so great, so heavy, I needed both my hands to receive it. बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि
शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। त्याग मूर्ति तू शांत चित्त तू योग रूप संसारी, दया प्रेम अन मानवतेचे प्रतीक तुझी ईश्वरी। सिद्ध मूर्ती सिद्धार्थ गौतम सकलांचा स्वामी, बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। त्याग मूर्ति तू शांत चित्त तू योग रूप संसारी, दया प्रेम अन मानवतेचे प्रतीक तुझी ईश्वरी। सिद्ध मूर्ती सिद्धार्थ गौतम सकलांचा स्वामी, बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। शांत चित्त योग रूप गौतम बुद्ध की जय। Have you ever noted, Khushi? Every religion on earth advocates the practice of meditation. It is said that 1 hour of meditation is more valuable than 70 years of obligatory prayers. Oh, that's really great. But sometimes I wonder, all this meditation, prayer, faith, does it all really matter? Of course they matter a lot. सुना नहीं तुमने? उसको ना अंधा कहिए जो आंखों से बेनूर है, अंधा उसको जानिए जो प्रभु दर्शन से दूर है। Coming before you all are students from class 3 with their skit Iman Ki Raah. Taking this opportunity, we would like to acknowledge the people without whom this event would not have been possible. We are thankful to our media partner Bhadresh Bhai and team of JMD News for the coverage of our event. Our sincere thanks to Mr. Uday for the live telecast of today's event on the school website. We also like to extend a heartfelt thanks to Praveen Bhai and Chetan Bhai for our beautiful costumes which have made our event colorful and attractive. We truly appreciate Mr. Sajid Bhai for the lights, sounds and the LED screen, which is the first time initiative by our school. सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज मस्जिद जाकर हुजूर मोहम्मद का बयान सुनते हैं। उनके जमाई अली भी वहाँ होंगे। सुना है वह हमेशा जरूरतमंद लोगों की मदद करते हैं। ए मुस्तफा, इन साहिल की 2 बेटियां शादी की उम्र की हो गई हैं। तो राख को भी सोना बना सकते हैं। मुझे अगर 200 दिनार मिल जाए या अल्लाह के नबी, तो मेरी सारी मुसीबतें हल हो जाएगी। अली, तुम तो मसीहा की तरह सब जरूरतमंदों की मदद करते हो। मैं चाहता हूँ कि तुम इस मामले का भी हल ढूंढो। ये तो खुद ही इतने गरीब है, ये दूसरों की क्या मदद करेंगे। चिंता मत करो भाई, अल्लाह सब पे रहम फरमाते हैं, वो हमारी मदद करेंगे। चलो मेरे साथ, मेरे घर चलो। बीवी फातिमा, तुम्हारे अब्बा साहेब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे इन साहिल की मदद करने को कहा है। लेकिन हम उनकी मदद कैसे कर सकते हैं जब हमारे पास ही कुछ नहीं है? तुम्हारी इजाजत से हम हमारी दोनों औलाद हसन और हुसैन को 200 दिनार की रकम पर गिरवी रख देते हैं। हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खातिर मैं अपने बेटों को कुर्बान करने के लिए राजी हूँ।
यहाँ आओ मेरी आंखों के नूर। एक साहिल को 200 दिनार की बेहद जरूरत है और हमें इनकी मदद करनी है। आप दोनों तो जानते हो कि हमारे पास इतनी बड़ी रकम नहीं है, इसलिए हम आप दोनों को थोड़े वक्त के लिए उन यहूदियों के पास गिरवी रख रहे हैं। हमारी फिक्र मत करो अम्मी जान, बेखौफ होके हमें गिरवी रख दो। हम हमारे नाना हुजूर के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर सकते हैं। नाना हुजूर उनके वादों के बहुत पक्के हैं। उनके लिए उनकी जात से पहले उनके वादे और काम हैं। मुझे 200 दिनार की जरूरत है। इसके बदले मैं अपने बच्चों को गिरवी रखने के लिए तैयार हूँ। आप तशरीफ फरमाए, मैं अभी 200 दिनार लाता हूँ। बेगम, अली को 200 दिनार की जरूरत है। वो बदले में अपने 2 बेटों को गिरवी रख रहा है। वाह, यह तो अच्छी बात है। हमारी कोई औलाद नहीं है। आप उन्हें रकम ऐसी शर्तों पे दीजिए कि वह रकम वक्त पे न दे सके, तो हम उनके दोनों लक्ष्य जिगर को रख सके। अगर आप सूरज ढलने से पहले रकम अदा न कर पाए तो आपके दोनों नूरे नजर हमारे होंगे। मुझे अल्लाह ताला पे पूरा भरोसा है। मुझे शर्त मंजूर है। ये लीजिए 200 दिनार। आपका शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह। बीवी फातिमा, आज सूरज ढलने से पहले यदि हम रकम अदा न कर पाए तो वह यहूदी हमारे नूरे नजरों को अपने पास रख लेगा। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। बंद दीदों में बरदाने आंसू, सिल दिए मैंने दर्दों को दिल में। बंद दीदों में बरदाने आंसू, सिल दिए मैंने दर्दों को दिल में। जब तलक तू बना दे न बिगड़ी, दर्द तेरे न जाए जवानी। दम दमाली अली 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 अली दमाली अली दमाली दम दमाली अली दमाली अली दमाली अली दमाली दम दमाली अली दमाली अली दमाली अली दमाली दम दमाली अली दमाली अली दमाली। अल्लाह का लाख लाख शुक्रिया। मेरे आंसू 2 बड़े मोती बन गए हैं। अभी हम जौहरी के पास जाकर इन्हें बेच देंगे। सुभान अल्लाह, यह मोती बहुत खूबसूरत है। मैंने ऐसे मोती आज तक नहीं देखे हैं। मैं इन मोतियों के 2000 दिनार दूंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम इन पैसों में से यहूदी का कर्जा चुका देंगे। अल्लाह की रहम से मैंने आपका कर्जा चुकाने का इंतजाम कर लिया है। भले ही तुम दिनार ले आए हो, पर अब यह बेफिजूल है। वैसे भी सूरज ढल चुका है। तुम ऐसे शख्स हो जो कभी अपने जुबान से मुकरते नहीं, और तुम्हारे वादे के मुताबिक तुम्हें अपनी औलादे मुझे देनी ही होगी। हुजूर, अजब करिश्मा हो गया। सूरज जो ढल चुका था अब आसमान में चमक रहा है। अल्लाह ने अपनी रहम आप पर बरसाई है। मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ। आज से मैं भी अल्लाह ताला को मानूंगा और उनके बयानों पर चलूंगा। Did you notice, dear Kea, that every religion speaks of the benevolence of God and love for humanity? Yes,
Whether it is Christianity, Buddhism, Hinduism or Islam, the message is the same. Is Dharm Sadbhavana ko salam. And now we move on to our next program, which deals with the life of the 24th Tirthankar of Jainism. Sri Mahavira was born in a royal family but abandoned all worldly possessions at the age of 30 in pursuit of spiritual awakening. Let's meet our 4th standard students with their skit on the tenets of Jainism and Tirthankar. Before we start with the song, our hearty welcome to the trustees who have just joined in and other invitees who also have joined in right now. भगवान महावीर के तीर्थंकर बनने का पता तो सबको उनके जन्म से पहले ही हो गया था, जब माता त्रिशला ने 14 महान शुभ सपने देखे थे। रूढ़ा रंगीला सपना देखे प्रभु वर मात आई, ऐसी अनुपम रात हो। खुशी की है बात हो, जन्मेंगे परम दयालु जग के तारण हार, ये तो तीन लोक के नाथ हो। खुशी की है बात हो, पहले सपने में देखा गजवर निराला, गजवर निराला। मोहती मीर हटाए ऋषभ सुहामणा, ऋषभ सुहामणा। सिंह अनुपम देखा तीसरे सपने में, चौथे लक्ष्मी जी वरदात हो। फूलों की माला और चंद्र विशाला, चंद्र विशाला। उगता सूरज करे दूर अंधियारा, दूर अंधियारा। आठवें सपने में ध्वजा लहराए, होगा आत्म का कल्याण हो। मंगल कलश और पद्म सरोवर, पद्म सरोवर। 11वां जड़ा रत्नों से प्यारा रत्नाकर, प्यारा रत्नाकर। देव विमान और जगमगते रत्न, 14 में अग्नि की सौगात हो। खुशी की है बात हो। जब पिता सिद्धार्थ और माता त्रिशला को इन महान सपनों के फलों के बारे में जानने की इच्छा हुई, तब मालूम हुआ माता त्रिशला की कोख में 3 लोकों के हृदय पे शासन करने वाले तीर्थंकर बालक का जन्म होगा। इस खुशी में भगवान महावीर का जन्म उत्सव उनके माता पिता ने बड़ी धूमधाम से मनाया। इनके साथ सारी जनता ने, यहाँ तक कि स्वर्ग के देवी देवता ने भी इस महान दिन का उत्सव मनाया। इस दिन को हम महावीर जयंती के नाम से मनाते हैं।
बचपन से ही भगवान महावीर बहुत ही बहादुर और निडर थे, इसीलिए उन्हें वर्धमान महावीर का नाम मिला। उनके माता पिता के वह बहुत चहीते थे। 30 वर्ष की युवा आयु में राजकुमार होते हुए भी उन्होंने राजपाट सब छोड़कर सब दान किया। उतना ही नहीं, केशलोच के साथ गृह त्याग किया। शरीर पे पहना अंतिम वस्त्र भी बांटा उन्होंने। शेष वस्त्र जो झाड़ियों में फंसा था, उससे भी मोह न रखते हुए उन्होंने वस्त्र त्याग किया। लगातार 12 वर्ष वे आत्म साधना में मौन और लंबे समय तक अन्न से दूर रहे। उन्होंने सबसे पहले मोह, राग और द्वेष पर अपनी जीत प्राप्त की, मगर इस दरमियान उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इस बीच चंड कौशिक जैसे सांप पर अपनी करुणा बरसाई, तो कभी अपने कान में खीले लगाने वालों को भी चुपचाप सह लिया। पर भगवान महावीर अपने ध्यान में लीन रहे और जुर्म ढाने वालों पर भी अपनी करुणा बरसाते रहे। इस तरह भगवान महावीर ने मोह, राग और द्वेष पर अपनी जीत पाई। 12 साल के कठोर तप के बाद चंबक में एक वृक्ष के नीचे उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। अंत में पावापुरी में ध्यान में लीन होकर उन्हें 72 वर्ष की आयु में मोक्ष की प्राप्ति हुई। भगवान महावीर का उपदेश सिर्फ जैन धर्म के लिए सीमित नहीं है, बल्कि पूरे विश्व के कल्याण के लिए है। आज भी जैन धर्म उनके दिए गए 5 उपदेश, अहिंसा यानी नॉन वायलेंस, सत्य यानी ट्रुथ, अर्चय यानी नॉन स्टीलिंग, ब्रह्मचर्य यानी सेलिबसी और अपरिग्रह यानी नॉन पोजेशन पे चल रहा है। महावीर स्वामी की जय। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जैन धर्म की इस झांकी के बाद आइए चले हमारी यात्रा के अगले पड़ाव पर। इंडिया इज अ लैंड ऑफ डाइवर्स रिलीजन्स एंड कम्युनिटीज। The major religion of Sikhism stands a class apart from the others on the account of their undaunting spirit of bravery. हाँ, गुरु गोविंद सिंह जी की वो हुंकार, चिड़ियों सो मैं बाज तड़ाऊं, गिद्धड़ों से मैं शेर बनाऊं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, तबे गोविंद सिंह नाम कहाऊं। आज भी दिलों में जोश भर देता है। आइए देखते हैं उनका खालसा रूप, presented by our students of class 4th.